السلام علیکم ریڈرز. ناول ابابیل. رائٹر دا سیکرٹ کلر. باب چہارم. لٹل گارڈن. قسط نمبر 4. پھولوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، پرندوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی بھی یقین نہیں کرنا چاہتا کہ لٹل گارڈن مر رہا ہے، کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا کہ لٹل گارڈن کا دل اس شدید گرمی میں سوج گیا ہے، کوئی بھی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ لٹل گارڈن کا ذہن آہستہ آہستہ اپنا سبز ماضی کھو رہا ہے. ہمارا آنگن تنہا محسوس کر رہا ہے، ہمارا آنگن بارش برسانے والے بادل کے ممکنہ دورے کی امید میں اونگ رہا ہے، ہمارا تالاب بہہ گیا ہے، اور جو ان چھوٹے چھوٹے پتے درختوں کی بلندیوں سے گر رہے ہیں اور پنجرے کی پیسٹل کھڑکیوں سے پرندوں کا گنگنانا کھانسی کے حملوں میں اچانک ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا آنگن تنہا محسوس کر رہا ہے، ہمارے پڑوسی اپنے کھیت میں بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی اپنے تالاب کے لیے حفاظتی کور لگا رہے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کا تہخانہ خفیہ ہتھیاروں کے اڈے کی طرح لگتا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے بچے شور مچانے والی بندوقوں اور بموں سے لڑ رہے ہیں. ہمارا آنگن خوف محسوس کر رہا ہے، اور میں اس ظالم وقت سے ڈرتی ہوں. مجھے ان سب کے برباد ہاتھوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے ان تمام اجنبی لوگوں سے ڈر لگتا ہے. میں ریاضی کی کلاس میں موجود تنہا احمق کی طرح بہت اکیلی ہوں. میرے خیال میں ہمیں لٹل گارڈن کو کلینک میں لانا ہوگا. میرے خیال میں میرے خیال میں میرے خیال میں اور لٹل گارڈن کا دل اس شدید گرمی میں سوجا ہوا ہے، اور لٹل گارڈن کا ذہن آہستہ آہستہ اپنا سبز ماضی کھو رہا ہے. فراق فرغزات کی نظم لٹل گارڈن سے اقتباس شدہ. الاچاتی میں واقع اس سبزہ زار میں چرند پرند کی مخصوص اور میٹھی آوازیں ہنوز 400 پھیلی ہوئی تھیں. اس کے سامنے ہوا میں اڑتے پرندے ایک فارمیشن میں گھومتے جا رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے ابابیل تھے جو شاید منصوبہ بندی کر رہے تھے. وہ پرواز سے پہلے یقیناً کوئی حکمت عملی تیار کر رہے تھے. وہ اڑنے سے پہلے خود کو موسموں کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل بنا رہے تھے. وہ آنے والے حالات کی تیاری کر رہے تھے. وہ ابابیل تھے جو عظیم تھے. کیا ابابیل کا کوئی لیڈر ہوتا ہے؟ کیا ان کی حکمت عملی جارحیت پسند ہوتی ہے؟ اس نے ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار سوچا. ابابیل ایک ساتھ پرواز کرتے ہوئے یکسانیت کو فروغ دینے میں ماہر ہیں، اور جہاں بات ان کے خاندان اور بچوں کی آ جائے، ان سے زیادہ جارحانہ انداز کسی کا نہیں ہوتا. جواب بھی وہ خود دے رہا تھا، اور اسے خود میں اور ابابیل میں کافی مماثلت نظر آئی. وہ ابابیل سے مسمرائز تھا. وہ درس جو ان ننھے سے ابابیل اور خاص کر پرپل مارٹن کو دیکھتے ہوئے اسے مل رہا تھا، وہ کہیں سے نہیں سیکھ سکتا. اس نے اپنے سے قدرے پیچھے مؤدب سے انداز میں کھڑے اس فارم ہاؤس کے ملازم کو دیکھا. وہ تو شب و روز اس مخلوق کے ساتھ وقت گزارتا تھا. وہ کتنا مشاہدہ کرتا ہوگا ان ننھے پرندوں کا. ملازم اس کے اشارے کا منتظر تھا. اس نے اپنی گن کی نال ہوا کی جانب کی. ملازم فائر کرنے کے لیے تیار تھا. وہ مسکراتے ہوئے ان ابابیل کو دیکھ رہا تھا. وہ سب بھی پرواز کے لیے ایک دم تیار تھے. گولی چلنے کی آواز اس سبزہ زار میں گونج سی گئی. آواز دور پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آئی تھی. سارے ابابیل ایک جانب کو پرواز کرنے لگے تھے. وہ بھی اسی اشارے کے منتظر تھے. اس کے سامنے کا آسمان خالی ہوتا چلا گیا. نیلا آسمان صاف نظر آنے لگا. پرپل مارٹن زمین پر آ گرا. وہ بے اختیار ٹھٹکا. اس نے چونک کر گردن موڑ کر دوبارہ ملازم کو دیکھا. گولی اس کے قریب سے نہیں چلی تھی. گولی ملازم نے نہیں چلائی تھی. ملازم بھی ہکا بکا کھڑا تھا اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. وہ وضاحت دے رہا تھا کہ گولی اس نے نہیں چلائی. دی گریٹ خلیل سعدی پاشا نے سارے سبزہ زار میں طائرانہ نگاہ دوڑائی. اس کا سانس تھم سا گیا. سب ساکت ہو گیا. وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا. اس نے گردن سیدھی کی اور دور زمین پر گرے پرپل مارٹن کو دیکھا. کیا پرپل مارٹن بھی چلا گیا؟ اس نے اذیت سے سوچا. نہایت تکلیف سے اس نے ملازم کو جا کر چیک کرنے کا اشارہ کیا اور خود دوسری جانب چلا گیا. یہ مقدس ترین پرندوں میں سے تھا. اسے قتل کیے بغیر بھی ہم بات کر سکتے تھے.
इंसान भी मुकद्दस तरीन मखलूक है खलील सादी, इसे कत्ल करने में क्यों आर महसूस नहीं करते? सामने वाले ने मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाया। खलील सादी खा जाने वाली नजरों से सामने मौजूद शख्स को देखा था। पर मार्टिन मर गया था। क्या वाकई? उसे दुख हुआ था, बेहद दुख। कमरे में हीटर की वजह से दर्जा हरारत काबिल बर्दाश्त था। नाइट बल्ब की रोशनी में कमरा नीम रोशन सा था। वहाब अपने बिस्तर में घुसा हुआ था। वो यकीनन सोया हुआ था। हादी का बिस्तर खाली था। वो स्टडी टेबल पर लैंप रोशन किए बैठा था। कानों में हेडफोन्स चढ़ा रखे थे और सामने टेबल पर उसका टैबलेट खुला पड़ा था। वहाँ डेथ नोट चल रहा था और हादी मगन सा उसे देख रहा था। हाथ में खाली पानी की बोतल थाम रखी थी कि उसका पसंदीदा सीन ख़त्म हो और वो पानी लेने जाए। कुछ ही देर बाद वो उठा, हेडफोन्स उतारकर मेज़ पर रखे और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। पानी लेकर वापस आया तो उसे वहाब के सांस लेने की बाकायदा आवाज़ आ रही थी। उसने हैरत से वहाब की जानिब देखा। वो कब से खर्राटे लेने लगा। वो उसे तंग करने की नीयत से उसके करीब गया और हल्का सा उसका क्रीम रंग का कंफर्टर सिरकाया, लेकिन अगले ही लम्हे वो ठटका। वहाब खर्राटे नहीं ले रहा था, वो जागने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी मुट्ठियों में कंफर्टर को भींच रहा था। वो हैरान सा खड़ा पहले देखता रहा और फिर जल्दी आगे बढ़कर उसे झिंझोड़कर उठाना चाहा। शायद वो कोई बुरा ख्वाब देख रहा था। वहाब का चेहरा पसीने से तर था। वो गहरे सांस ले रहा था और हादी उसे आवाज़ें दिए जा रहा था। वो एक झटके से उठ बैठा जैसे किसी डरावने ख्वाब से बाहर आया हो। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, आवाज़ बहाल किए, सब नॉर्मल था। हादी के हाथ में पानी की बोतल थी। वहाब ने वो पानी की बोतल ली और गटागट चढ़ा गया। हादी हैरान से उसे देखते रहा। बहुत बुरा ख्वाब था। उसके तासुरात कुछ नॉर्मल हुए तो हादी ने उसके बिस्तर पर बैठते पूछा। ख्वाब नहीं देख रहा था, वहाब ने बैठ ग्राउंड से टिक लगाते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। फिर वो अपनी ओनी टोपी ठीक करते हुए पूछ रहा था। स्लीप पैरालिसिस था शायद। वो गहरा सांस लेकर कह रहा था। ओह, आज स्पाइडर आया था कि स्नैक? हादी निहायत इश्तियाक से पूछ रहा था। वहाब कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कहा, आज मैं किसी को बचाना चाह रहा था लेकिन मैं मूव नहीं कर पा रहा था। वो कौन थी वहाब? वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं उनके बारे में सोचते सोचते सो गया था और वो ख्वाब में भी आई। मैं सो गया और फिर मैं उठ नहीं पाया। क्या तुम उन चुड़ैल की बात कर रहे हो जो रात खाने पर आई थी? हादी सरसरी से अंदाज में पूछ रहा था। उसे फिलहाल डेथ नोट देखना था, जो वो कितनी मर्तबा ही क्यों ना देख ले, उससे बेजार नहीं होता था। खबरदार जो तुमने दोबारा उन्हें चुड़ैल कहा। वहाँ सीधा होकर बैठते हुए उसे टोक कर खुफगी से बोला। तमाम, क्या तुम उनकी बात कर रहे हो? हाँ, वो बहुत अच्छी थी। यानी आज तक मॉम के अलावा किसी औरत ने हमसे इस तरह मोहब्बत से बात नहीं की। और सो जाओ वहाब, तुम्हारे स्लीप पैरालिसिस का दौरानिया अब ख़त्म हो चुका है। ई गीजलर, यानी शब बखैर। वो बेजार सा कहता उठ खड़ा हुआ। उसके नज़दीक मोहब्बत एक फालतू जज्बा है जिसे वो कभी महसूस नहीं कर सका था। एक ही मुलाकात में वो वहाब की तरह लोगों से मुतासिर नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो अच्छी थी, फिर भी कौन सा हमेशा के लिए आई थी। कुछ ही देर बाद कमरे में वापस पहले जैसी पुरसुकून खामोशी छा गई थी। हादी हेडफोन्स चढ़ाकर स्टडी टेबल से अपना टैबलेट उठाकर अपने बिस्तर में घुस गया था। अब की मर्तबा उसने डेथ नोट नहीं लगाया। उसने वहाब के दोबारा सो जाने का इंतज़ार किया और डेथ नोट को किसी और वक्त के लिए छोड़ रखा। अब वो सर्च इंजन पर कुछ लिख रहा था। वहाब दूसरी जानिब करवट लिए हुए था। वो जो भी देखना चाहता था सुकून से देख सकता था। व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस? उसने टाइप किया और उसके सामने कई लिंक्स खुलते चले गए। पहले नंबर पर मौजूद लिंक पर उसने क्लिक किया। क्या आधी रात को आपने खुद को ऐसी कैफियत में पाया है कि जैसे कोई आपके सीने पर सवार है और आपका गला दबा रहा है? आपको अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही है। आप इतने खौफजदा हैं कि लाख कोशिश के बावजूद इस चीज़ को खुद से दूर नहीं कर पा रहे और इतने लाचार हैं कि पूरी कोशिश के बावजूद साथ सोए हुए इंसान को अपनी मदद के लिए नहीं पुकार पा रहे हैं। इसी तरह नींद में अचानक आपको ये महसूस होता है कि आप अपने कमरे में अकेले नहीं, बल्कि ऐसी मखलूक भी मौजूद है जिसे आप देख नहीं सकते और ये मखलूक आपको मार देना चाहती है। ये एहसास इतना शदीद होता है कि आपके हाथ पांव शल हो जाते हैं। ये मखलूक आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ रही है और आप अपनी पूरी तवानाई इस्तेमाल करके भी इसको दूर नहीं कर पा रहे
और ना ही किसी और शख्स को अपनी मदद के लिए बुला पा रहे हैं। इस कैफियत से बाहर निकलने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है। एक खौफ है, एक ना दिखाई देने वाली मखलूक है जो आपको मार देना चाहती है। फिर अचानक क्यों होता है कि आपके शल जिस्म में हल्की सी हरकत पैदा होती है और वो मखलूक कहीं छुप जाती है और आप खौफ की हालत में बेदार हो जाते हैं। आपका जिस्म खौफ से लरस रहा होता है, आपको अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है। आपके साथ ये वाक़या एक दो बार नहीं बल्कि बार बार होता है और आप इस कैफियत से इतने डर जाते हैं कि आप नींद से बचने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ताकि आप इस खौफनाक मखलूक से खुद को दूर रख सकें जो सोते ही आपके बिस्तर के करीब से नमूदार हो जाती है। इंसान की नींद सुकून की बजाय मौत और खौफ की अलामत बन जाती है। उसने झुरझुरे लेकर सामने खोला आर्टिकल बंद कर दिया। ये डेथ नोट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वाई स्लीप पैरालिसिस हैपेंड। उसने कीवर्ड्स में रद्दोबदल करने के बाद सर्च आइकन पर क्लिक किया और दोबारा से कई लिंक्स खुल गए। अब की मर्तबा उसने दूसरे पेज पर जाकर कोई तीसरा लिंक खोला। स्लीप पैरालिसिस नींद के दौरान या नींद से बेदार होते ही एक ऐसे एहसास को कहते हैं जो आपको बताता है कि आप हरकत नहीं कर सकते और आपका जिस्म मफलूज हो चुका है। ऐसे वक्त में अगर आप किसी को आवाज़ देने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ भी बंद हो गई है और आप बोल नहीं सकते। स्लीप पैरालिसिस के दौरान आमतौर पर इसको महसूस करने वाले के हवास जाग रहे होते हैं और हवास की बेदारी के दौरान वो महसूस करता है कि जैसे उसके ऊपर कोई बोझ पड़ गया है या उसका दम घुट रहा है और उसके साथ हो सकता है कि उसे नज़र का फरेब यानी कि हेलुसिनेशन और बहुत ज़्यादा खौफतारी हो जाए। वो शौक सा पड़ रहा था। उसने एक नज़र वहाब के बिस्तर की जानिब देखा। शायद वो सो चुका था या सोने की कोशिश कर रहा था। जो भी था, कम अज़ कम वो हादी की जानिब मुतवज्जा नहीं था। ज़िंदगी में कभी न कभी तकरीबन हर फर्द ही इसको महसूस करता है, मगर कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। स्लीप पैरालिसिस दौरे शबाब में शुरू होता है और 20 से 40 साल तक की उम्र तक मुसलसल तंग करता रहता है। मगर वहाब तो अभी 20 साल का हुआ ही नहीं, तो उसे ये कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है? आमतौर पर यह कैफियत रात को सोने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है या सुबह के उस वक्त पर बेदार होती है जब आप बिल्कुल जागने वाले होते हैं या तकरीबन जाग गए होते हैं। और ये कैफियत ख्वाबी, बसाती, समई और महसूसात की फरेबी जैसी कैफियत पर मुश्तमिल होती है और इसकी 3 कैटेगरीज हैं। उसने वो पेज बंद करना चाहा क्योंकि उसे डर लगने लगा था, लेकिन वो अपना हाथ नहीं हिला सका। इंट्रोडर। इसमें दरवाजे के हैंडल को घुमाने की आवाज़, कदमों की चाप, किसी इंसान का साया या कमरे में किसी खतरे का एहसास वगैरह महसूस होता है। इनक्यूब्स। सीने पर बोझ, सांस लेने में दुश्वारी, सांस घुटना, गला घुटना और ऐसे लगना जैसे आप मरने लगे हैं जैसे एहसास महसूस होते हैं। वेस्टिबुलर मोटर। खुद को घूमता हुआ, ऊंचाई से गिरता हुआ, तैरता हुआ, उड़ता हुआ महसूस करना। स्लीप पैरालिसिस की शिकायत मुख्तलिफ इंसान सदियों से कर रहे हैं। अगरचे ये जानलेवा नहीं है, मगर इसके तजुर्बे के बाद इंसान खौफज़दा हो जाता है और ये तजुर्बा उसे भूलता नहीं और उसे परेशान करता रहता है। उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरकर खुद को नॉर्मल करना चाहा। अब सो भी जाओ हादी, मैं सुबह बाबा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। वहाब ने करवट बदली तो उसे देखते हुए कदरे गुस्से से कहा, अच्छा सो रहा हूँ। वो लापरवाही से कहता आगे पढ़ने लगा। सोने के दौरान इंसान का दिमाग 5 मुख्तलिफ स्टेजेस में हरकत करता है, जिसमें पहली स्टेज रैपिड आई मूवमेंट यानी REM यानी आँखों का मुख्तलिफ सिमतों में घूमना है और इसी में खलल के बायस स्लीप पैरालिसिस की कैफियत शुरू होती है। जिस्म REA और नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM को तब्दील करता है और इन दोनों का साइकिल तकरीबन 90 मिनट का होता है और हम ज़्यादातर नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दौरान सो रहे होते हैं और रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आंखें हरकत कर रही होती हैं और हम ख्वाब भी इसी मूवमेंट के दौरान देखते हैं। स्लीप पैरालिसिस के दौरान जिस्म REM में दाखिल होने या बाहर निकलने के दौरान दिमाग से हम आहंगी पैदा नहीं कर पाता और ऐसे में इंसान के हवास जाग जाते हैं, मगर जिस्म पैरालाइज्ड नींद में होता है और दिमाग का वो हिस्सा जो खतरात को महसूस करता है वो एक्टिव हो जाता है। लोगों के स्लीप पैरालिसिस महसूस करने की वजूहात आम तौर पर नशा करना, नींद में बेकायदगी, बिल्कुल सीधे सोना या फैमिली में स्लीप पैरालिसिस की बीमारी का होना होता है।
और इसके साथ साथ ये किसी और बीमारी जैसे डिप्रेशन, हाइपरटेंशन या जहनी इज़्तिराब वगैरह की वजह से भी पैदा हो सकता है। हादी, आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब बाबा। वह आपको कमरे में मध्यम सी रोशनी से भी कोफ्त हो रही थी। वो उसे धमकी दे रहा था। हादी ने मुंह बसोरकर सारे खुले हुए पेज बंद कर दिए और फिर टैबलेट ऑफ करके स्टडी टेबल पर रखकर अपने बिस्तर में घुस गया। वो अभी तक किसी बारे में सोच रहा था। उसे पढ़कर ही खौफ महसूस हुआ था। वह आप तो ये सब फील कर रहा था। उसे क्या करना चाहिए? तुम्हें रात में डर लगे तो मुझे जगा सकते हो। मुझे भी वो चुड़ैल बाबा की दोस्त अच्छी लगी थी। ई गीजलर यानी शब बखैर। हादी अपने बिस्तर में आरामदायक अंदाज में लेटे हुए बोला। वहाब ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उस रात उन दोनों भाइयों ने बहार सुल्तान के बारे में बहुत सोचा। सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी हादी अपने बाप से यही डिस्कस कर रहा था और उसके बेहद इसरार पर हलील सादी ने एक साइकाइट्रिस्ट से वहाब की अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। वो अपने बेटों को कभी ना नहीं कहता था। उसके बेटे बहुत सुलझे हुए और डिसिप्लिन थे। अगले दिन शाम से कुछ देर पहले हलील सादी उसके ऑफिस में मौजूद था। वो पहले तो उसकी आमद पर हैरान हुई, फिर सादगी से उसे खुशामदीद कहते हुए बैठने का कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा। वो ज़ाहिरी तौर पर इतना बुरा भी नहीं था जितना उसके बारे में बताया जाता था। खैर, वक्त के साथ वो जान लेगी और हलील सादी का ये केस वो किसी सूरत अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती थी, क्योंकि एक वही था जो उसे माफिया के अंदर की बातें बता सकता था और बातें निकलवाना बहार सुल्तान को आता था। हलील सादी माफिया बॉस था और वही डॉन वट्टो यानी माफिया बॉसेस का बॉस, गॉडफादर का रास्ता बहार को दिखा सकता था। उसे हलील सादी से कोई न कोई मुआहदा कर लेना चाहिए था। चाय या कॉफ़ी? ग्रीन टी, उसने ऑफिस का जायज़ा लेते हुए संजीदगी से कहा। बहार ने महसूस किया कि वो बहुत कम बोलता है, या ये अल्फ़ा मेल बनने का कोई स्टंट था जो माफिया के लोग अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं ताकि लोग उनसे खौफज़दा रहें। बहार ने अपना ही फ़ोन उठाकर सेक्रेटरी को ग्रीन टी और कॉफ़ी लाने का कहा और अपनी ऑफिस चेयर पर तमकीनत से बैठी टेबल पर कदरे आगे को झुकी और उससे पूछा, क्या आप अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का इस्तेमाल करना चाहेंगे खलील बे? वो पेशेवराना अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर रही थी। आप दुबई से कब वापस आईं? वो भी इतनी ही संजीदगी से पूछ रहा था, लेकिन सवाल ज़ाती नौयत का था। यानी तुर्क लोग यानी को खींच कर पढ़ते हैं। बहार ने अचंभे से पूछा। यानी सुल्तान बे ने आपकी वापसी का नहीं बताया, हालांकि उन्हें बताना चाहिए था। ये तो ऐसे ही आपको टीवी पर देख लिया तो अपना केस आपके पास ले आया। यानी हमारे अच्छे ताल्लुकात थे जो शायद आपके वालिद की करम नवाजी की बदौलत अच्छे नहीं रहे। वो जैसे किसी खबर पर सरसरी से तबसरा कर रहा था। सॉरी, क्या हम इस वक्त काम की बात कर सकते हैं? कल घर में आप अपने बच्चों की मौजूदगी की वजह से कोई एतराफ़ या इनकार नहीं कर सके थे। उसे इस बात का पस मंज़र मालूम था, लेकिन वो उसे डिस्कस नहीं करना चाहती थी। हलील सादी ने मुस्कुराते हुए गर्दन को 3 मरतबा इस बात में हिलाया और कहना शुरू किया। बक साहब जी, यानी देखिए प्रोसिक्यूटर, मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रग स्मगलिंग में मेरा हाथ था और सबूत में छोड़ता नहीं। अलबत्ता उस अदाकारा के साथ ना किसी किस्म का राब्ता था और ना मैंने उसे कत्ल किया है। इससे ज़्यादा कोई सच नहीं। आपको किसी पर शक है कि कोई आप पर ये कत्ल प्लान कर सकता है? हलील ने झील सी गहरी आंखों से चंद लम्हे संजीदगी से उसे देखा, फिर सर झटक कर हंस दिया। मुझे किसी पर शक नहीं है, शाने झुकाकर उसने सादगी से कहा। श्योर, फिर हम आज ही स्क्वायर रूम से शुरू करेंगे। वो मायूस होकर पीछे होकर बैठी और एक फाइल खोलकर सफ़े पलटने लगी। अगर मैं किसी पर अपना शक जाहिर करूं तो क्या उसे शामिल तफ्तीश करेंगी? हाथों को बाहम आपस में मिलाए वो कुर्सी से टेक लगाए उसे देखते हुए अब के संजीदगी से पूछ रहा था। आप मेरे क्लाइंट हैं और आपके दिफा के लिए मैं किसी को भी शामिल तफ्तीश कर सकती हूँ पाशा बे। वो कुछ कहने लगा कि बाहर का फ़ोन रिंग हुआ। हलील ने मेज़ पर रखे उसके फ़ोन को देखा, लेकिन उस फ़ोन पर कॉल नहीं थी। बाहर ने कदरे गड़बड़ाकर अपने पर्स को ज़मीन से उठाया और संभल कर उसके अंदर मौजूद फ़ोन को निकालकर कॉल आंसर करके महज इतना कहा कि अभी वो मीटिंग में है, कॉल बैक करती है, और वापस उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। साहब जी,
यानी शुक्रिया प्रोसिक्यूटर। मुझे सुल्तान उमर पर शक है कि ये कत्ल उसने मुझ पर प्लान किया है। तो क्या अब आपके वालिद मोहतरम को शामिल तफ्तीश किया जाएगा? बाहर की आंखें हैरत से वाह हुई, क्योंकि उसे सामने बैठे शख्स के अल्फाज पर यकीन नहीं आया था। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ने लगा था। जी, मैं मुकम्मल तौर पर होशो हवास में हूँ, वो भी मुतमईन से अंदाज में कह रहा था। कागान दरवाज़ा नॉक करके चाय और कॉफ़ी के साथ अंदर आया। आप उस शख्स पर शक कर रहे हैं जिसने आपको बचाने के लिए मुझे कायल किया है और जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। उसकी हल्की आवाज़ से भी शोले निकल रहे थे। कागान ने हैरत से उन दोनों को देखा और बाहर निकल गया। ऑफ कोर्स वो मदाखलत करने की पोजीशन में नहीं था। वकीलों को जज्बाती तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए बहार हानम। मैं तो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के तहत आप पर भरोसा कर रहा हूँ। उसने कप उठाकर चाय पीते हुए उसे देखा। आप भरोसा नहीं कर रहे, आप शक का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं माफियाज के खिलाफ किसी केस पर काम कर रही हूँ। यानी सावजी हानम, आपको मेरी सलाहियतों पर ज़रा सा भी शक नहीं है। वेरी गुड, ये जाहिर करवाता है कि आपका होमवर्क मुकम्मल है। हलील सादी ने कप मेज़ पर रखा और अपने कोट के अंदरूनी जेब से एक छोटा सा फ़ोन निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए बाहर की जानिब बढ़ाया। आज के बाद हमारी तमाम गुफ्तगू इस फ़ोन पर मेरी इस यकीन दहानी से होगी कि आप मुझे डबल क्रॉस नहीं कर रही। ऐसे फ़ोन साथ रखना अच्छा होता है और आप तो पहले से ही ऐसा फ़ोन रखती हैं, मुश्किल नहीं होगी तमाम। वह अपने अंदाज में कह रहा था। हलील बे, वो कदरे संभल कर टेबल पर दोनों कोहनियाँ रखे आगे को झुकी और सर्द आवाज़ में कहना शुरू किया। भाड़ में गए उस शख्स की अच्छाई। मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ जो ये मानती है किसी क्रिमिनल पर उस वक्त तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक उसकी फाख्ता के पर न निकल आए। वो उसके चेहरे पर हैरत देख सकती थी। मैं पैसों के बाद हर केस को अपनी ज़ात से पहले रख कर देखती हूँ। मुझे आप पर भरोसा नहीं है और आपको कुछ ऐसा करना होगा कि मैं आप पर भरोसा कर सकूँ। आइंदा मेरे बाप को मेरे काम से अलग रखिएगा। वो चुपचाप उसे सुनता रहा। मैं उस अरबी कहावत पर यकीन नहीं रखता साहब जी। मेरे राज फाख्ता की तरह पुरअमन नहीं हैं, बल्कि भेड़िए की तरह खूंखार हैं। आप सुन नहीं सकेंगी। वो उसी पुरसुकून अंदाज में कह रहा था। बाहर के आबरू ऊपर को उठे और फिर उसकी गर्दन ऊपर को उठी। अगले 48 घंटों तक मैं आपके राजों के फाख्ता बनने का इंतज़ार करूंगी, वरना हम कभी मिले ही नहीं थे, ना दुबई में और ना ही इस्तांबुल में। तमाम। वो कहकर अभी पीछे होकर बैठी ही थी कि दरवाज़ा एक धाड़ के साथ खोला गया और कोई अंदर दाखिल हुआ। नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।